Today I'm going to talk about analyzing semiotic choices, words, and images. So let's begin here. So the first question we gotta ask is like, is the chapter title of the chapter says that it's about analyzing semiotic choices. So first we gotta understand this concept that what are semiotics or semiology or semiotic studies. So in very simple or basic definition is the study of signs and symbols, right? Especially when we see these signs and symbols being used in a communication system to convey meanings. So this will be termed broadly as semiotics or semiology or semiotic studies. So then the basic question we might understand is how do we communicate? So according to this chapter, humans use system of semiotic choices to communicate. At times they make choices to convey what they want to convey. They make verbal choices. They use words or different structures. They do it to highlight certain aspect of their intention or conceal something or mention something or to be silent when they don't want to say something. They remain silent on the particular topic or they might allude something. So this is how this is these things we do with the language, and then we can also make use of visual choices along with verbal choices. For example, in order to produce a discourse, we might take help of an image to convey a particular meaning, right? So in images, we can use strategies like backgrounding or foregrounding, or we can use might be an office or a market or whatever. We can use certain lighting effects. We may highlight something or we may background something or whatever. We may use certain colors. So these techniques help us to convey what we want to convey. So that is how we communicate. So then we're gonna have a look at like how why do we have to use visuals or verbals in order to communicate? As it's an adage or it's a cliche nowadays that a picture is worth 1,000 words, right? On one side we have 1,000 words, on one side we have picture. Picture is more clearer or it expresses more meanings. There are certain concepts that we cannot simply express using language. And nowadays we are living in a culture that is very much visual in nature, right? So again, there are certain fields of science where visuals play a very important role. On top of those lists is like medical sciences, right? Without visuals, we cannot grasp difficult concepts, because if we use only language in those classes, our students won't grasp the ideas in detail. So we gotta be using visuals. So in real life, the concept of visual communication is basically is in the domain or in the discipline of media studies and cultural studies. From there, people like they use whenever a news reporter reports something, even on TV or in print media, they make use of certain images alongside the text. So in order to analyze those texts, we need to have sound knowledge about these images, visual communications. So why do we have to use visual communications? Because it is more suggestive and open to various interpretations, right? So we can mean many things by just portraying a single image alongside the text. For example, you right in on the screen, you can see here again this person, this lady out here. She's wearing a veil, but she is wearing a veil in American flag as a veil. Again, the image can be interpreted as, in many ways, and it may mean many things at the same time. So is the case here. In the second picture, I'm talking about this picture here. The lady again, she's wearing a veil, and the other people they're on the background. This is foregrounded, or might be this picture might be interpreted in some way. For example, this if this image is included in racial text or racial discourse, it may highlight this is the target we are talking about. This is the target we have to finish or whatever. So this might convey multiple meanings. So on the other side, when we talk about language generally broadly, right? So it has fixed meanings, but visuals they do not have fixed meanings, right? Then visuals they give authors some degree of maneuver not permitted through language use. Again, I've already talked about these kinds of concepts. It is up to me how I would like my readers to see the image. So I can do it with images. So that is why visual communication is in somehow more powerful in this when you talk about media reports or
or cultural studies. So they play a very important role while propagating certain sort of identity. So the bottom line here is visual and linguistic semiotic resources have different affordance. In other words, they're more suitable for different kinds of purposes, right? So इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं हम टोटली लिंग्विस्टिक्स को सिर्फ लैंग्वेज इस्तेमाल करें या सिर्फ विजुअल इस्तेमाल करें. At times we need both. For example, if I for the time being, if I want you to just ignore this thing, this label, this caption, you cannot interpret this picture. It is only text that when you read it along with the text, only then you're going to get the meaning, right? Uthia mindset brings the illiterate and the literate at the same level. So that is how you understand what the author or discourse producer is trying to say something. Again, here, this is recently, I downloaded from the internet yesterday. Again, without the words, you might not understand what's happening inside the picture. When you take certain words, when you write certain words, everything is clear. Again, here, see, without text, in the image, you won't be able to understand what is happening inside the diagram only. So that is how we use. At times we need language. At times we need images. At times we need both to convey our intentions. So next question is we've already learned is that communication is all about making choices. So then the next important question would be, why do the choices matter? Right. On one side, we have infinite choices at our end, right? We are free to choose any structure or any words or any picture to convey anything. But out of those infinite choices, we prefer certain choices to convey what we want to convey. These we only prefer those choices that serve our purpose, right? They justify our ways or convey our intentions, at times implicitly or explicitly. So this is how we do. Again, how choice is going to matter. For example, the choices we're going to have both verbal and visual. First of all, they're going to impact the immediate meaning of our discourse. Whatever we say, it first affects the immediate meaning of discourse. Our intended meanings in any setting is always subjected to or linked with broader social or cultural or political or economic situations or ideologies. That is what we've been talking about since the beginning of this class, right? And secondly, why do the choices matter? They create the intended social reality of the discourse producers. That protects their interests. ये हमारी reality हमारे point of view से create करने की कोशिश की जाती है. For example, Pakistan is playing against India. Their cricket match I'm talking about. So the media no, it's war. Sorry. For example, Pakistan and India, they're fighting a war. So मीडिया रिपोर्टर जो है पाकिस्तान के अंदर जब whenever वो पाकिस्तानी सोल्जर्स की बात करता है, so a newscaster, a media publisher might use these words for Pakistani soldiers: a husband, a son, a father, right? In some sentences, a father has been killed, a son has been killed, or a husband has been martyred in जो किसी war में, right? In that war. जब वही discourse producers gonna use words like, for Indian soldier की जब बात करता है तो uses word like an enemy or a Hindu, a kafir. So these choices portray reality in a very different way. And as we know that here, if we talk about Pakistan, so most of the majority of the people are like Muslims. So again, जो अब husband कहते हैं, जो word son कहते हैं, father कहते हैं, तो हमारी feelings की जो domain है वो different हो जाती है. So is the case with when you say for Indian words, Indian soldier, you're going to use word enemy or Hindu or kafir. So वहाँ पे एक और तरह के emotions आ जाते हैं. तो it means कि उनकी killing जो है justified हो जाती है. So ये तो हो गया verbal में, ये choices matter करती हैं कि completely different domain जो है emotions की या understanding की develop हो जाती है, reality की develop हो जाती है. So is the case with visuals. फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा हमारा शहीद हो गया किसी वॉर में, तो उसकी बैकग्राउंड पे हम इमेज लगा रहे हैं, माइट भी खाना काबा का लगा दें, कोई कोई हेवन या कोई ब्यूटीफुल सीनरी लगा दें टू ये देने के लिए, इस माइट बी दिस पर्सन इज गोइंग टू हेवन, उसका स्माइलिंग फेस हो. अगेन ग्रीन कलर इज आवर रिलीजियस और बड़ा अच्छा कलर है हमारे लिए, सेक्रेड कलर है, तो उसका जो है कन्वे करने के लिए वी माइट अटैच ग्रीन कलर विद दैट, और फ्लैग अटैच कर दें. माइट बी एज वी नो दैट फ्रॉम हिस्ट्री दैट कोई भी कबीला जंग जीत जा रहा तो वो फ्लैग अपना प्लान करते हैं. माइट बी फ्लैग इज अ विक्ट्री, वी आर ऑन द path of win and we're going to win this battle.
सो फॉर जब इंडिया की किसी की इस तरह हो तो उसकी माइट भी हम फायर उसके पीछे लगा दें टू कॉन्सेप्ट के जहन्नम में जा रहा है, ये माइट भी बुलेट रिडल्ड कॉर्प्स उसकी हो कि हाँ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था बिकॉज दे आर हिंदूज और काफिर्स व्हाटएवर, माइट बी हैंडकफ्स हो या इस तरह बैलेंस हो गया उसके साथ जस्टिस हो गया वगैरह वगैरह. तो सी दीज चॉइसेस दे ऑन द सरफेस दे लुक ओके देयर इज नॉर्मल वर्ड्स. हम इन हमारे पास इन्फिनिट चॉइस है वर्ड्स की बट वी कैन चूज एनी वर्ड आउट देयर. और इसी तरह का हजारों इमेजेस हैं तो एक कोई भी इमेज हम चूज कर सकते हैं बट हर इमेज और हर वर्ड जो हम यूज करेंगे अपने डिस्कोर्स में या कोई भी डिस्कोर्स प्रोड्यूसर चूज करेगा तो एक रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होगी. तो हमारा हमारा काम क्या होगा बीइंग एनालिस्ट के हमने इन सिम्योटिक चॉइसेस को देखना है बड़े गौर से कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई द ऑथर इज यूजिंग सच एंड सच वर्ड्स और सच एंड सच इमेजेस. सो अब टिल नाउ इस क्लास में जो मेन फोकस रहा है as per my understanding that CDA and वो CDA के ऊपर रहा है. CDA जो है बेसिकली जो इनिशियली जो मॉडल शुरू में था वो मोनो मॉडल था, मींस के इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स एलिमेंट्स के ऊपर फोकस रहा है. इसमें हम देख रहे थे लैंग्वेज चॉइस क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, लिंग्विस्टिक लेक्सिकल फील्ड्स क्या है वगैरह वगैरह. तो इसमें विजुअल का एलिमेंट नहीं था. ये मीडिया एंड कल्चर स्टडीज के डिस्कोर्स से आया है. तो अगेन इसका जो पर्पस होता है वेंडिक के मुताबिक टू रिवील द हिडन और बेरिड आइडियोलॉजी इन अ डिस्कोर्स. सीडीए का मेन जो पर्पस है वो ये है. तो अगेन कुछ जो एनालिस्ट थे जो उन्होंने एनालाइज करना चाहा मीडिया का टेक्स्ट या कल्चरल डिस्कोर्सेस को, उसमें उन्होंने इमेजेस भी होते हैं तो उन्होंने कहा कि लाइक ओके वी नीड सम अदर मॉडल और टूल्स, सेट ऑफ टूल्स दैट के जिसमें हम ये चीजें इमेजेस या विजुअल्स को भी हम एनालिसिस कर सकें. तो उसके लिए भी इट गेव path to multimedia critical discourse analysis. तो यहाँ पे फोकस जो है बोथ हैं वर्बल एंड विजुअल एलिमेंट्स इन अ डिस्कोर्स. अगेन यहाँ पे पर्पस जो है यहाँ पे एक चीज समझने की है कि इसमें पर्पस 100% जो है वो यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है टू रिवील हिडन और बेरिड आइडियोलॉजी. यहाँ पे पर्पस डिस्क्रिप्शन है, वी डिस्क्राइब अ डिस्कोर्स कि इसमें रेकरेंट पैटर्न्स क्या हैं, विजुअल पैटर्न्स क्या हैं, वर्बल पैटर्न्स क्या हैं. और इसकी अगेन व्हाई डू वी डू इट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डिस्कोर्स कि ये क्यों हो रहा है डिस्कोर्स में. वी माइट ऑल्सो गो फॉर बेरिड आइडियोलॉजी लेकिन एमसीडीए का 100% पर्पस ये नहीं है कि ये हर दफा ही बेरिड आइडियोलॉजी को सर्च करेगा या पावर रिलेशंस को सर्च करेगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. सो सीडीए से पहले भी बहुत सारे एनालिसिस की चल रहे थे. एक टाइप का एनालिसिस था कंटेंट टाइप एनालिसिस, या दूसरी टाइप का एनालिसिस था लिटरेरी स्टाइल इंटरप्रिटेशंस हुआ करती थी लिटरेचर के जो भी हम करते आ रहे हो रहे होते हैं. तो उनका जो फोकस था वो लिंग्विस्टिक फीचर्स थे ओनली. उनमें पावर का जिक्र नहीं था या आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें डिस्कस नहीं हो रही थी. लेकिन फिर जब सीडीए आया तो उनके अंदर इन इन कंटेंट्स के अंदर सिस्टमेटिक टूल्स नहीं थे किसी डिस्कोर्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए. इम्प्लिसिट पावर रिलेशंस नहीं थे तो ये सीडीए ने इनको प्रोवाइड किए. एमसीडीए या सीडीए मींस द सेम हियर. तो ये जो ट्रायंगल है तो सीडीए या एमसीडीए रिवील्स अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड लाइक लैंग्वेज पावर एंड आइडियोलॉजी. किस तरह ये लैंग्वेज के जरिए कभी पावर की तरफ चले जाते हैं कभी आइडियोलॉजी की तरफ चले जाते हैं और इससे हम सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, माशरे के सोसाइटी के लोगों को उनकी बिहेवियर्स को अपनी पॉलिसीज को डिजाइन कर रहे होते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स दे आर समहाउ रिलेटेड इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे. तो वेंडिक ने इसी को कंटिन्यू किया गया और कहा कि सीडीए जो है द बेसिक पर्पस ऑफ सीडीए इज टू द स्टडी ऑफ इम्प्लिसिट और इनडायरेक्ट मीनिंग्स इन अ टेक्स्ट कि क्या छुपाया जा रहा है टेक्स्ट में, किस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे एक जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ही एक्सप्लेन्स द इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो यहाँ पे ये है कि जब भी हम पहले बात कर चुके हैं कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस. हम चॉइसेस कर रहे होते हैं और हर चॉइस का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है. हमें शायद कभी पता होता है और कभी नहीं पता होता. वी इंटेंशनली यूज सर्टेन वर्ड्स. तो ये कहता है बीइंग एनालिस्ट तो हम जो है वर्ड्स के जरिए कोशिश करेंगे कि राइटर या जो प्रोड्यूसर है कोर्स डिस्कोर्स के माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था. बिकॉज कि जब भी डिस्कोर्स प्रोड्यूसर होता है जब एक डिस्कोर्स के बारे में किसी आइडियाज के बारे में वो सोचता है तो उसके माइंड में मुख्तलिफ इमेजेस मुख्तलिफ चॉइसेस चल रही होती हैं. वो टेक्स्ट में वो सारी की सारी लिखता नहीं है. कुछ चीजें इम्प्लिसिट होती हैं, इनडायरेक्टली वो कन्वे करता है. लेकिन हमने इन कनेक्शंस को पकड़ के उसके दिमाग तक पहुंचना है कि वो क्या उसके माइंड उस वक्त मेंटल मॉडल था क्या, उस वक्त किस सोचों में था कि वो उसने इस तरह लिखा है. दैट इज हाउ वी ट्राई टू डू विद दिस सीरिया.
Discourse producer was choosing lexical items from certain lexical fields to paint a specific picture of reality. कि वो एक सर्टेन एलिमेंट्स को लेकर एक खास किस्म की इमेज या रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन इसमें जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो लेक्सिकल फील्ड्स है। लेक्सिकल फील्ड क्या है? लेट्स हैव अ लुक हियर। लेक्सिकल फील्ड वेरी सिंपल एंड बहुत आसान वर्ड्स में ये होगा कि किसी भी टॉपिक सिनोनिम्स किसी भी टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल वर्ड्स जब भी कुछ मेरा कलर, मैं बात कर रहा हूँ कलर के ऊपर, तो मेरे पास एक रेपर्टोर है कि मैं ब्लू चूज कर सकता हूँ, रेड, ऑरेंज, ये सारे जो है टॉपिक जो है कलर की हेडिंग में आते हैं। तो राइट अगेन, तो फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल कैसे मैं आपको देता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मैंने जो है मीडिया के ऊपर मैं बैठा हूँ, मैंने एडवर्टाइजमेंट चलानी है और मैंने लोगों को अपनी स्क्रीन के सामने बिठाना मेरा पर्पस है। तो मैं अगर सीधा-सीधा कहूँ कि यार एक फ्रेंडली मैच होने जा रहा है, तो नोबडी इज़ गोना सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन फॉर लाइक मे बी 10 आवर्स और 8 आवर्स और 4 आवर्स, नोबडी इज़, किसी को इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं जब वर्ड्स यूज़ करूँगा, मैं अपनी लेक्सिकल फील्ड्स यूज़ करूँगा, ये एक वॉर है। हमारा कल मैच नहीं है, ये एक वॉर है, ये क्लैश है, ये क्वारल है, ये राइवल है, ये बैटल है, ये कम्बैट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करूँगा, तो रियलिटी में उनके माइंड में ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी लेक्सिकल फील्ड है, वॉर वाली। इसमें से मैं चूज़ करूँ ये एक वॉर है, हमने ये मैच, ये वॉर जीतनी है। अगेन जब मुस्लिम यूएसए में कोई बंदा मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइट बी वो एक लेक्सिकल फील्ड चूज़ करे, बैकवर्ड, रिजिड, फंडामेंटल, इससे सिनोनिम्स सारे वर्ड्स यूज़ करेगा। तो यानी कि इन्हीं फील्ड्स के अंदर रहते हुए वो एक इमेज या एक रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगेन अगर हम पाकिस्तानी हैं, टिपिकल लाइक सोच वाले हैं, जिसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स है या पाकिस्तानी मीडिया का डिस्कोर्स है, हम अगर इंडिया को डिनोट करेंगे या इजराइल को डिनोट करेंगे या ऐसा आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह यूएसए को हम डिनोट कर रहे हैं, इसमें हमने ज़रूरी, अगर हम पॉपुलर होना चाहते हैं या लोग हम हमारे साथ इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं, तो हमने इसके अंदर हेट्रेड की फील्ड के अंदर रहना है या उनको एनिमी के तौर पे प्रेजेंट करना है या थ्रेट टू आवर सर्वाइवल और थ्रेट टू इस्लाम, इस तरह के अगर फील्ड्स के अंदर रह के हम वर्ड्स चूज करेंगे, तो हमारे जो है लोगों के इमोशंस के साथ ब्लैकमेल करके somehow we can उनको अपने साथ ले सकते हैं, because most of the people here they don't think critically anyhow. So that is how the lexical fields are used to portray a specific reality. सो ये जो आइडिया है लेक्सिकल फील्ड, इवन तो लेक्सिकल अगेन इज फ्रॉम लैंग्वेज, सो ये लैंग्वेज तक महदूद नहीं है, इसमें इमेजेस भी आ जाते हैं, तो ये इमेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप किसी मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं किसी न्यूज़पेपर के, अमेरिका के अंदर कोई न्यूज़पेपर है उसमें, तो अगेन आपने एक रेंज डिफाइन करनी होगी, अपनी फील्ड डिफाइन करनी होगी कि कौन कौन से इमेजेस मेरे आइडिया को अच्छे तरीके से, जो मैं जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे करेंगे। सो ये फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इमेजेस में हम किसी चीज़ों को फोरग्राउंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड में रख सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, कलरिंग, हम सारी चीज़ें आगे जाके देखते हैं कि ये क्या-क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजेस के साथ। सो ये लेक्सिकल फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फील्ड्स हमारी रियलिटी, एक खास किस्म की रियलिटी प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प आउट करती हैं। देन फैवलर जो है इसी बात को आगे लेके चलता है, वो कहता है कि लेक्सिकल फील्ड या इवन इमेजेस वाली भी फील्ड, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। वो कहता है कि ये ऑथर के पास एक मैप होता है कि जो हमारे लिए क्रिएट कर रहा होता है। इस मैप इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेरिटरी दैट रिवील्स अबाउट द मैप मेकर। तो हम इन सिंबल्स को अगर पकड़ लें बीइंग एनालिस्ट, तो हम उसके माइंड तक या उस तरह के पहुँच सकते हैं कि वो क्या सोच रहा था हमारे बारे में। माइट बी उससे हम वर्ड्स को अगर पैटर्न फाइंड आउट कर लें, तो उससे हम देख सकते हैं कि उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेलियंस क्या है, साइलेंस किसके ऊपर साइलेंस है या किसको प्रोमिनेंट कर रहा है वो चीज़ें, फोरग्राउंड क्या कर रहा है, बैकग्राउंड क्या कर रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है, क्या एक्सक्लूड कर रहा है, एरियाज़ चीज़ों को किस तरह डिफाइन कर रहा है और किसके साथ एसोसिएट करके डिफाइन कर रहा है, किस चीज़ को हाइलाइट किया जा रहा है और किस को कंसील किया जा रहा है, कहाँ पे बाउंड्री लगा रहा है, एक्सट्रीम किस चीज़ को एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये चीज़ें जो है लेक्सिकल फील्ड के ज़रिए मुमकिन है। तो अभी हम पहले सेक्शन की तरफ, ये तो था बैकग्राउंड सारा कि सिमियोटिक क्या होती हैं और चॉइसेस क्या होती हैं, और तो अभी हम देखते हैं कि लैंग्वेज के अंदर ये चॉइसेस, अगर बीइंग एनालिस्ट अगर हम हैं, तो हम कौन सी चीज़ें वी गोना फोकस ऑन। तो हम ये इसमें 5 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले है वर्ड्स कनोटेशन, कि किस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, कौन से वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कभी-कभी हम जो है मसला कुछ और होता है, कभी-कभी ये राइटर्स जो होते हैं, मसला कुछ और होता है, लेकिन वो बड़े-बड़े वर्ड्स लेके आ जाते हैं, ओरिजिनल
जो मसला होता है उसके ऊपर बात ही नहीं करते। वी कैन हैव अ लुक कि ये किस तरह वर्ड कनोटेशंस जो हैं एक रियलिटी क्रिएट करने में हेल्प आउट करते हैं। और देन और लेक्सिकलाइजेशन होती है कि हमें जहाँ पे एक वर्ड चाहिए होता है हम जानबूझ के 10 वर्ड्स लगा देते हैं, ठीक है? वो क्यों इस तरह करते हैं? देन बाज़ औक़ात हम सप्रेस करते हैं एक आइडिया को या उसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं। हालाँकि रीडर जो है वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये किस बारे में है, उसके बारे में बात हो, लेकिन बात नहीं होती उसमें। देन कभी-कभी हम स्ट्रक्चरल ऑपोज़िशंस यहाँ पे मतलब बाइनरी ऑपोज़िशन की मदद से एक हम साइड्स लेते हैं डिस्कोर्स प्रोड्यूसर के तौर पे। जब व्हेन वी आर डिस्कोर्स प्रोड्यूसर्स वी टेक साइड्स कि एक ये हमारी साइड है, एक उनकी साइड है। तो अगेन अस एंड देम की हम गेम खेल रहे होते हैं, अदरिंग की गेम खेल रहे होते हैं, राइट? सो ये बाइनरी पोजीशन से मुमकिन होता है। सो देन हम हमारे पास लेक्सिकल चॉइसेस हैं और जॉनर्स ऑफ कम्युनिकेशन के किस तरीके से हम मीडियम यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेक्सिकल चॉइसेस कौन सी अगेन फील्ड्स वो हम देखेंगे इसमें। तो ये हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली है इसमें कि किस किस्म के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेकिन स्टिल द सेम। अगर ये वर्ड्स 3 लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, यूथ अटैक्स लोकल बिल्डिंग्स या यूथ अटैक लोकल एड्रेसेस और यूथ अटैक लोकल फैमिली हाउसेस। सो ये वर्ड बिल्डिंग जब पढ़ने से आप अगेन हो सकता है आपके माइंड में ये में जाए, रीडर के माइंड में ये में जाए कि ये खाली बिल्डिंग्स है, कोई इंसान नहीं था। ठीक है, अगर हो रहा है तो बिल्डिंग को हो रहा है, माइट बी इमोशनली ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना हो उसमें, उस केस में, इस सिनेरियो में, इस सीन में, इस न्यूज़ में, व्हाटएवर। But when the writer, discourse producer uses this word like youths take local addresses, यहाँ पे जो है अगेन एड्रेसेस, जब व्हेन यू टॉक अबाउट एड्रेसेस यहाँ पे अगेन थोड़ी सी फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं कि addresses means there are might be some people living, might be some cities or like this. But when you talk about when you say this, youth used to take local family houses. Again, the word family and houses, these two words, they are very much emotionally charged words, right? इनकी जो reality है वो that is very much different. Family is a place, even though is a place where we feel secure and safe. Homes is again related to family, close ties. तो यहाँ पे अगर मीन्स का मतलब ये है कि वो हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी को थ्रेट कर रहा है। सो जो रियलिटी है दैट इज वेरी मच डिफरेंट। सो ये दीज काइंड ऑफ, तो हम ये देखना होगा बीइंग अ डिस्कोर्स एनालिस्ट कि किस टाइप के वर्ड्स यूज कर रहा है वो। तो ये एक रिपोर्ट है। ये दूसरा इसमें एलिमेंट हम देख रहे हैं प्रीडोमिनेंस कि कौन से वर्ड ज्यादा इस्तेमाल हुए पड़े हैं। तो ये यूके के अंदर एक एजेंसी थी, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट ने, वहाँ पे पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी या इस तरह के मसले, इंटरनेशनल टेंशन्स थी, इस तरह के मसले थे। तो उन्होंने जो है एक एजेंसी क्रिएट की गवर्नमेंट ने कि ये मसले खत्म करो। तो उनकी जो मिशन स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, सो उनकी मिशन स्टेटमेंट, दिस इज द मिशन स्टेटमेंट आउट द विजन, कहता है जी हमारा विजन ये है, फास्ट ग्रोइंग, ठीक है, डायनामिक और इकोनॉमी बेस्ड, इनोवेटिव, नॉलेज बेस्ड, सक्सेसफुली ग्लोबल इकोनॉमी, राइट, इनोवेटिव स्ट्रेटजी, देन इस तरह के वर्ड्स, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, इनोवेशन, राइट। सो इस तरह के वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल हुए और ये बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो रहे हैं, राइट। अगेन कहीं भी यहाँ पे पॉवर्टी का नहीं लिखा हुआ, कहीं पे रेशियल टेंशन्स का जिक्र नहीं हो रहा, नथिंग इज लाइक, हालांकि मसला ये था इनका विजन क्या है, और इस विजन को कभी भी देखे इंसान को नहीं लगता कि ये वाले ये कभी हमारे मसले हल करेंगे। सो ये सारे वर्ड्स थे जो नीचे लिखा हुआ है, डायनामिक और इनोवेटिव, और ये सारे वो वर्ड्स हैं। हालांकि ये इसको ये फेयर क्राफ्ट कहता है, ये एम्प्टी बिजनेस रेट्रिक है ये, कि बस सिर्फ लफाजी है, लफ्ज़ों की गेम है। और इसमें जो काम हुआ पड़ा है कि कंसील किया जा रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि ये ऐसा कौन कर रहा है, कि किसकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु इज़ गोना सॉल्व दिस। दिस ऑर्गेनाइजेशन डजंट टेल इट, कि हमें बताती ही नहीं है, ये हमें वर्ड्स में उलझा के चीज़ें हाइड की जा रही हैं, राइट। सो ये एक सर्टेन वर्ड्स के जरिए हम इस तरह काम कर रहे हैं, डिस्कोर्स प्रोड्यूसर ये काम करते हैं। देन जो है अगेन ये ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस की वेबसाइट है, ठीक है। एक हॉस्पिटल है, माइट बी ट्रस्ट से जो चल रहा है, पहले ये गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग कट करने के लिए इसको प्राइवेटाइज किया और ट्रस्ट का नाम दे दिया। और उसकी जो है अगेन मिशन की स्टेटमेंट ये देखें, ये वर्ड है चेरिशिंग और एक्सीलेंस और फाइंडिंग अ वे, इनोवेटिव फॉर एडवांसमेंट और वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे लोग जो हैं इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वर्किंग टुगेदर, क्या पेशेंट जाके यहाँ पे उनके साथ काम करना शुरू हो जाएंगे, या
they'll find a way to what excellence in what. तो ये एक बंदे ने फिर रिसर्च की है, फैलक, उसने कहा है कि डिस्क्राइब द लूजिंग इंक्रीजिंग लॉस ऑफ इक्वल एक्सेस। तो अगर कहता है इस तरह के वर्ड्स के पीछे जो मसला ये था कि इस तरह के वर्ड्स के पीछे ये हो रहा था कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ कॉरपोरेशन आ गई, उन्होंने अपनी मर्जी से अपना अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया कि ओके मैं ये इक्विपमेंट हॉस्पिटल को ये प्रोवाइड करूंगा और ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। अगेन यहाँ पे चेरी पिकिंग हो रही थी कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अपने रेफरेंस लड़ा के अपनी-अपनी प्रॉफ़िट बनाने के चक्कर में लगा हुआ था और इस तरह के वर्ड्स उनकी मिशन स्टेटमेंट में हैं। अगेन वेग आइडियाज़ हैं। तो ये जो है दीज़ चेंजेस आर कंसील्ड बिहाइंड द लैंग्वेज ऑफ विटिलिटी, एक्सीलेंस, विजन एंड कोऑपरेशन। इस तरह के बड़े-बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करके जो है रियलिटी को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हकीकत में शायद एक्ज़िस्ट नहीं करती। अगेन ये जो कहता है कि व्हाट इज़ द ट्रस्ट एक्सीलेंस इन, ये एक्सीलेंस किस चीज़ में एक्सीलेंस है, राइट? अम, लोगों हॉस्पिटल का काम तो लोगों को सेहतयाब करना होता है, तो ये लाइक ये किस किस्म के वर्ड्स ये यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? अगेन देन लेक्सिकल जो डिस्कोर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कभी-कभी हद से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे एक वर्ड चाहिए, एक वर्ड से काम चल सकता है, नहीं, वो वर्बोसिटी की तरफ जाते हैं, वो ओवर परसुएट करते हैं, राइट? ताकि ये स्पेशली उन जगह पे जहाँ पे जो डिस्कोर्स प्रोड्यूसर है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू और जो रीडर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है कॉन्फ्लिक्ट में हो, आइडियोलॉजिकल कहीं पे कंटेंशन हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो कहीं पे, ठीक है। सो वहाँ पे इस तरह के वर्ड्स, फॉर एग्जांपल जब भी हम बात करते हैं नर्स की तो हमारे माइंड में जो जनरल है वो फीमेल की पिक्चर आती है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डॉक्टर, तो जनरली राइट माइट बी, आजकल तो ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है लेकिन स्टिल डॉक्टर, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डॉक्टर्स तो मेल इमेज आता है। तो यहाँ पे डिस्कोर्स प्रोड्यूसर स्पेसिफाई करने के लिए मेल नर्स और फीमेल डॉक्टर, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि एक पर्टिकुलर रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, नर्स जो आपके माइंड में आ रहा है 50 पर जब नर्स का वर्ड है वो वाला नहीं, मेरे वाली नर्स जो मैं कह रहा हूँ मेल नर्स, आप उसको सोचो। तो अगेन हमें दोबारा उसी की तरफ जाना पड़ेगा जो हमने अभी EMDA जो कि पॉवर्टी खत्म करने के लिए ट्रस्ट बनाई गई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, राइट? तो उसमें ये वर्ड्स जो हैं ज़रूरत नहीं थी इनकी, ये वर्ड्स बार-बार इस्तेमाल हुए हैं, डायनामिक और इनोवेटिव और कंपीटिंग और क्रिएटिव। तो ये ओवर यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक हियर। अगेन इसका मकसद जो है कि काम हो कुछ नहीं रहा, ठीक है? लेकिन शो करने के लिए कि बहुत कुछ हो रहा है, राइट? तो ये इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ डिस्कोर्सेज़ में। देन जो एक और वर्ड्स के अंदर चीज़ होती है, उसे कहते हैं सप्रेशन और लीगल लेक्सिकल एब्सेंस, कि एक चीज़ आप ज़िक्र नहीं करते, इवन दो कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका ज़िक्र ही नहीं होता। तो इसमें 2 टेक्स्ट आपके सामने हैं। दिस इज़ द ओरिजिनल रिपोर्ट, ये किसी कोर्ट की रिपोर्ट है। दिस रिपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ये दिस रिपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये किसी कोर्ट की रिपोर्ट है जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है कि वो पब्लिश करे व्हाट इज़ हैपनिंग समवेयर। सो इसको इस रिपोर्ट, ये दिस इज़ द ओरिजिनल रिपोर्ट, इसको समराइज़ किया गया रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए कि रेडियो के ऊपर ये पब्लिश हो। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल इफ वी रीड इट आउट, one of the few suspects to express the remorse over his alleged involvement in last year's bombings on Indonesia's Bali Island arrived at court on Thursday to hear his sentence. Ali Imran is facing possible death penalty, but prosecutors have asked that he receive 20 years in prison because he has shown regret and cooperated with investigators. Imran's older brother, Amar Rosi bin Nurhasian, and another key defendant, Imam Samudra, already have been sentenced to face firing squad to their roles in the attack, which killed 2202 people, mostly foreign tourists. तो इसको समराइज किया गया ताकि ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई किया गया कि एम्बिगुइटी खत्म करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, अ मैन्स बिन जेल, कौन सा मैन जेल हुआ, nobody knows, for life for helping to plan and carry out the Bali bombings। ये कब हुई, no mention of time, nothing। 26 Britons were among more than 200 people killed in an attack in October last year। Ali Imran was spared the death sentence। Again, इसमें Ali Imran का क्या रोल है? Nobody knows। Spared the death sentence handed down to other suspects। How many were there? कोई पता नहीं। He expressed remorse and cooperated with the Indonesian authority।
राइट? सो ये कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे रीडर समथिंग इज़ मिसिंग हियर कि किस इश्यू था क्या? किस कोर्ट में ये हियरिंग हुई है? किस ज्यूरिडिक्शन में थी और क्या हो रहा है? नोबडी नोस अबाउट इट। एक ब्रीफ सी समरी ये चलती है इस तरह। वी डिस्कोर्स प्रोड्यूस कभी-कभी रियलिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बाय नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग। अगेन यहाँ पे वही है कि चीज़ें मेंशन नहीं होती। ये अगेन मेडिकल का जो हमने देखा पहले हॉस्पिटल का, तो यहाँ पे इलनेस की ज़िक्र ही नहीं हो रहा। हॉस्पिटल बनती है टू क्योर द इल, राइट? फॉर केयरिंग, मेडिसिन की। यहाँ पे कहीं भी वी डोंट सी एनी वर्ड रिलेटेड टू, वी सी हेल्थ, अगेन हेल्थ इज़ जनरल थिंग, राइट? सो यहाँ पे चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ क्या है हॉस्पिटल में, वी डोंट सी एनीथिंग हियर। अगेन चेरिशिंग एक्सीलेंस, फाइंडिंग अ वे, इनोवेटिव, वर्किंग टुगेदर, इस तरह के वर्ड्स तो हैं, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड्स होने चाहिए थे कि इसमें ये वाली इलाज की सहूलत है, इस तरह के डॉक्टर, ये इस तरह के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वगैरह वगैरह, दिस डजंट टॉक अबाउट। ये इवन के नेशनल लेवल के ऊपर हो रहा है, लाइक सो दिस इज व्हाट अगेन समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस। और देन एक और आइडिया है लैंग्वेज से रिलेटेड, वो ये है कि इसमें कभी-कभी हम मीनिंग्स को क्रिएट करने के लिए हमें बाइनरी ऑपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है। एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगेन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब यंग ओल्ड वी हैव टू टॉक अबाउट यंग, गुड और बैड और डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, राइट? अगेन कभी-कभी हम एक का ज़िक्र करके दूसरे की तरफ इशारा कर देते हैं, कभी-कभी दोनों का ज़िक्र कर देते हैं। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर। तो व्हेन दिक कहता है लाइक व्हेन सच ऑपोजिशंस आर मोर ओवरली is included in a text, we can talk of ideological squaring। Ideological squaring very आसान, मतलब आसान लफ्जों में ये होगा कि दो पार्टीज हैं, ए और एक बी। तो हम पहले क्या करते हैं, डिस्कोर्स प्रोड्यूसर क्या करता है कि एक साइड लेता है, या इसकी साइड लेगा या इसकी साइड लेगा, राइट? तो फिर एक बात यहाँ पे करेगा, फिर उसी तरह की बात उधर करेगा। यहाँ पे अगर प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा है तो वहां पे प्रोफेशनलिज्म क्या है, अगेन उस तरह की बात करेगा। यहाँ पे एजुकेशन की बात करेगा, अगेन एजुकेशन की। ये स्क्वेयरिंग कर रहा है, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो दोनों साइड पे एक एक अगेन रियलिटी, खास किस्म की रियलिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या हुआ, इसकी अगेन एक कटिंग है न्यूज़ की। ये सेटिंग क्या है कि तालिबान ने बेनज़ीर को जो है यहाँ पे 2007 में शी वाज़ किल्ड। तो बैक इन अफ़गानिस्तान देयर वर सम तालिबान्स, वो पार्टी की तैयारी कर रहे थे कि चलो जी, हमने आज हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, कामयाब हो गया, तो चलो हम पार्टी करते हैं। तो ये जो है वहाँ पे उस वक़्त जो अमेरिकन सोल्जर्स थे या ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्होंने जो है उनकी रेडियो को इंटरसेप्ट किया, जो भी मुग़ल उनकी कम्युनिकेशन हो रही थी। तो उन्होंने कि उन्होंने देख लिया कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है ऑल ऑफ अ सडन उनके ऊपर अटैक कर दिया सुबह के वक़्त, ठीक है? सो तो इस इवेंट को किसी ब्रिटिश न्यूज़ कैस्टर, ब्रिटिश डिस्कोर्स प्रोड्यूसर ने इसको इस तरह प्रोड्यूस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें हम जो इसने अगेन साइड्स ली हैं। पहले देखिए, ये द वर्ड्स आर बॉयज़, ये इस तरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कि ये जो डिस्कोर्स प्रोड्यूसर है, ये इनकी साइड पे, ब्रिटिशर्स की साइड पे, और ये इट इज़ रिटन फॉर ब्रिटिश ऑडियंस। तो ये नहीं कि ये हमारी साइड है और दूसरी तरफ दूसरी साइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी वो ब्रिटिश की या सोल्जर्स की बात करता है तो वर्ड्स यूज़ करता है रॉयल मरीन्स, ट्रूप सर्जेंट, हीरोज़, कमांडोज़, चार्ली कंपनी। ये सारी बातें, इस तरह के वर्ड्स क्यों यूज़ करता है कि ब्रिटिशर्स आर प्रोफेशनल पीपल, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा एक प्राइड है, ठीक है? जब वो तालिबान की बात करता है तो वर्ड यूज करता है ब्लड थर्स्टी, ईवो, फनेटिक्स, रैगटैग्स, सेंट्रीज, ब्लड थर्स्टी, रेवलर्स और एनिमल्स। अगेन स्क्वेयरिंग कर रहा है कि यहाँ पे उसने प्रोफेशनलिज्म की बात की कि इन्होंने इतना अच्छे तरीके से इनको किया। दूसरी तरफ उसने कहा कि जब उसने रैग टैग्स की बात की कि वो डिसऑर्गेनाइज थे, उन्हें पता भी नहीं था, ये उनके सर पे खड़े होकर उन्होंने जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इर्रेशनैलिटी, जब उसने वर्ड यूज किया फनेटिक्स, ब्लड थर्स्टी और एनिमल्स, तो यहाँ पे वर्ड्स जो है रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश की कि दे आर इर्रेशनल। जब यहाँ अपने लिए वर्ड यूज किए हीरोज, राइट? तो अगेन बहुत अच्छा इमेज क्रिएट करने की कोशिश की। सो ये भी कभी कभी डिस्कोर्स प्रोड्यूसर्स जो है बाइनरी पोजीशंस के जरिए या स्ट्रक्चरल पोजीशन के जरिए जो है एक खास किस्म की रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें I've already talked about कि किस तरह अपनी फाइटिंग की जो है
अगेन इसमें चीज़ें नहीं बताई गई, जो चीज़ें मिस की गई हैं कि वाई आर्मी ने क्यों किल किया, ये कहाँ पे हुआ, कि कौन इन्वॉल्व था, ओवरऑल एम क्या था, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, बट दैट इज एक खास किस्म की रियलिटी जो है वो प्लान करने की कोशिश की गई है और लेक्सिकलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया दोबारा। और आखिर में वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो एक जब जब भी डिस्कोर्स प्रोड्यूस करता है तो वो अपने आप को जो है बहुत आसान लफ्जों में कहा जाए तो आसमान के ऊपर बिठा के अपने आप को बहुत ऊपर वाली रैंक पे बिठाता है और रीडर को बहुत लो लेवल पे कंसिडर करता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये एक पावर कहता है कि पावर मेरे पास है, माइक मेरे पास है, कलम मेरे पास है, लिखने वाला मैं हूँ, तो यू आर पावरलेस। तो ये हमें शो करवाया जाता है, कहता है यस कि वी आर पावरलेस। ये भी डिस्कोर्स के अंदर हो रहा होता है, राइट। अगेन वो कोई लीगल टर्म यूज करेगा, फलानी लॉ के मुताबिक ये एक बात गलत है, वो नहीं कहेगा कि मैं कह रहा हूँ, वो कहेगा कि नहीं ये फलाना लॉ जो है फलाने सेक्शन के तहत गलत है, मींस कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मुझे ज्यादा पता है। अगेन हायरार्किकल, कि किसी मेरे फलाने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात हुई है, उसने मुझे ये बताया ये बात है, राइट, वो ये कह रहा है मेरे उस इंटरव्यू हुआ है। अगेन कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते, आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, और मैं जो है पहुंच के ये बात आपको बता रहा हूँ, एंड यू आर नॉट एट दैट लेवल। अच्छा, फिर इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा तरीके से जो पावर का इज़हार होता है, स्पेशलिस्ट नॉलेज। अगेन साइंस की टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, बड़ी-बड़ी ऑफ़िशियल साउंडिंग टर्म्स इस्तेमाल की जाते हैं अथॉरिटी के लिए। इसकी मिसाल जो एडवर्टाइज़मेंट, इवन कि उन्होंने रैकेट बिन कीजिए एक कंपनी है, उन्होंने माइट बी शैम्पू बेचना हो, माइट बी सोप बेचना हो, तो उसके लिए वो जो है लैब दिखाते हैं साइंटिस्ट की, कि एक डॉक्टर आ रहा Pseudo होता है, pseudo सूरज या scientific terms, yes, or सूरज pseudo साइंटिस्ट, official terms. एग्जैक्टली। तो वो जो है हमें बताते हैं कि वो रियलिटी को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि ये हाँ ये बात जो है 100% ऑथेंटिक है। तो अगेन जो ड्रग की कंपनीज हैं उनको ये बात पता है, कोई भी आप मार्केट में चले जाएं खांसी का सिरप सिरप लेने के लिए, उसका नाम हमेशा कोई अजीबो गरीब टैक्सीलेक्स और दिस एंड दैट, कभी भी उसका नाम नहीं होगा स्मूथ कफ सिरप। अगेन उन्हें पता है कि इस तरह का नाम सीधे सीधे नाम लिख दिया, राइट, तो कौन खरीदेगा। तो अगेन उसको एक ब्रांड करने के लिए लाजमी उसका नेम हमेशा मेडिसिन का नेम इसी तरह अजीबोगरीब साइंटिफिक टर्म्स रखी जाती हैं, ताकि ये एक इसी तरीके से ये निज़ाम चलता है। दैट इज हाउ द थिंग्स आर। तो ये अथॉरिटी के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो दूसरी बाज़ औक़ात ये भी करते हैं, और इसके साथ एक और इसके साथ बिल्कुल पैरेलली एक और काम भी कर रहे होते हैं। वो हमारी ज़ुबान में कुछ बातें करते हैं, कोलिक्वल इन एवरीडे लैंग्वेज। एक बात जो है वो साइंस की कर लेंगे बहुत बड़ी, कि फलाने आर्टिकल में साइंस में ये पब्लिश है, और साथ में फिर एक उसी सेंटेंस के अंदर कहीं पे बिल्कुल वर्नाक्युलर लैंग्वेज इस्तेमाल कर देंगे, स्ट्रीट लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये आम बंदे के लिए है। तो ये अगेन इस बुक में तो नहीं था, लेकिन ये मैंने आइडिया है एक, उसे कहते हैं स्ट्रीट क्रेड, एक टर्म है। ये टर्म मीडिया से रिलेटेड है, एक्टिंग या उससे मैंने वहाँ से सीखी थी कि ये जो बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, वो एक ख़ास लोगों का एक्सेंट सीखते हैं या उस लहजे में बात करते हैं, ताकि जो इनकी मूवी है, इनकी ड्रामा है, ताकि उ उन लोगों में ज़्यादा मशहूर हो जाए। ये पॉप कल्चर के कुछ वर्ड्स होते हैं, बज़ वर्ड्स होते हैं, जो कि फ़ौरन से मशहूर हो जाते हैं। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा होता है, तो ऑन पर्पस उस तरह का लहजा ये रखते हैं। तो इसको स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी या स्ट्रीट क्रेड कहा जाता है। तो इन ऑर्डर टू अर्न स्ट्रीट क्रेड, तो इस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो ये अगेन यहाँ पे एक आर्टिकल है, छोटी-सी रिपोर्ट है, ड्रग्स के ऊपर है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से राइटर डिस्कोर्स प्रोड्यूसर ने कभी-कभी साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल किया है, और पैरेलल उसके साथ ही स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है या एवरीडे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कि वो बिल्कुल हमारे साथ बात कर रहा है, हमारे लेवल के ऊपर बात कर रहा है। कभी वो अथॉरिटी पे चला जाता है और कभी वो हमारे लेवल पे आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके एक ख़ास किस्म की कभी कंट्रोल कर रहा होता है, और ये मीनिंग भी दे रहा होता है मैं आपके जैसा हूँ, लेकिन मुझे आपसे ज़्यादा पता भी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्ट करता है, व्हेन आई वाज़ अ किड, किड इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है? वर्ड है, माय मम्स वर्स्ट फियर्स वर एक्सीडेंटली स्वेलिंग ब्लीच। अगेन ये इसी तरह अगर हम इसको चलते जाएँ, सिनिस्टर डेंजर, एक्सटेसी, ये देखें अभी स्पेसिफिक होना है, इल्लीगल ड्रग्स वगैरह। सो इसमें इफ आई टॉक अबाउट बी मोर स्पेसिफिक, जहाँ पे ये इसने वर्ड ई टैबलेट्स, ठीक है? लाइक इस तरह के वर्ड्स, कभी वो वहाँ पे चला जाता है, कभी यहाँ पे चला जाता है। तो ये जो है
दोनों चीजों को मिक्स करके एक खास किस्म की रियलिटी जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है इंस्टेड ऑफ रेशनल डिबेट्स दैट वुड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डैमेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव यूज, न्यूज कंस्ट्रक्शन रीइंफोर्स मोरल एवोल्यूशन एवोल्यूशन इसके ऊपर मोरलिटी के ऊपर इसको बेसिस इमोशंस के ऊपर माइंड भी और इनका अपना जो सही गलत है इसके ऊपर उनको जज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन इस आर्टिकल में ये जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ये सारे इनफॉर्मल हैं, स्ट्रीट लैंग्वेज है, राइट। और ये जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ये सारे वो दूसरे हैं हाईली फॉर्मल वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स, सूडो साइंस माइट बी कॉल इट। सो ये दोनों मिक्स करके इस्तेमाल किए गए हैं, राइट। अगेन फेयर इनको कहता है मिक्सिंग दीज टू लेक्सिकॉन्स इन दिस वे हेल्प्स टू इन्फ्यूज ऑफिशियल डिस्कोर्स विद अ पॉपुलिस्ट वॉइस। कि ये दोनों काम एक तरह ही कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑफिशियल भी है, ये सही भी है, ऑथेंटिक भी है, उसके साथ जो है ये आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वर्ड्स में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको समझ भी आ जाए। तो ये दोनों काम डिस्कोर्स के अंदर हो रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मुश्किल काम होता है लैंग्वेज को एनालिसिस करने में कि हमारी अपनी आइडियोलॉजी। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है लाइक इफ देयर इज अ टॉपिक आई वांट टू टॉक अबाउट और उस टॉपिक के जो व्यूज हैं लाइक उस टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं उनको उनमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनकी मेरा इंटरेस्ट और जो टॉपिक है उसका इंटरेस्ट सिमिलर है। तो मुझे उस वक्त डिस्कोर्स एनालिस्ट के तौर पे जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सेम है तो उस वक्त मैं एनालिसिस करते हुए गलती कर सकता हूँ, राइट। बिकॉज मेरा व्यू ही उसी का व्यू है तो मैं जो है इसे सेल्फ साइकोलॉजी की टर्म होती है सेल्फ सर्विंग बायस कि मैं उन्हीं आइडियाज पे बिलीव करूंगा जो जो मेरे लिए ठीक हैं। अगर उसी तरह की आइडियाज मुझे मिलते रहेंगे मैं कहूँगा हाँ ये सही है, मैं सही जा रहा हूँ। तो इस तरह के डिस्कोर्स में हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी कि जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो। तो इसके लिए जो फिर हल क्या है कि we have to pay close attention to the details of the text कि उसमें डिटेल से हमने देखना चीजें पड़ेगी। अगेन इसकी मिसाल यही है कि ये एक आर्टिकल है इसमें गार्डियन में पब्लिश हुआ था कि इसमें यूनिवर्सिटीज को जो है इसकी कट्स लगे थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कट्स। तो जो राइटर जो है वो भी जिसने बुक लिखी है वो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और उसकी भी यही व्यूज हैं। अगेन उसने एनालिसिस किया तो इसने कहता है दिस समथिंग वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू इट देयर आर सर्टेन क्लूज दैट वी कैन फाइंड आउट। तो कहता है ये वर्ड्स जो इसने यूज किए हैं यहाँ पे वर्ड यूज किए एक्स और डिच, ये रूथलेसनेस, ये यहाँ पे न्यूट्रल लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता था। एक्स की बजाय काटने के इस कॉन्टेक्स्ट में रिड्यूस का वर्ड यूज किया जा सकता था, लेकिन इसने डिस्कोर्स प्रोड्यूसर ने इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट करने के लिए एक्सट्रीम्स पे चीज़ों को डिफाइन करने के लिए न्यूट्रल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। ऑन पर्पज एक खास किस्म की रियलिटी जो है पोर्ट्रे की गई। अगेन वर्ड यूज हुआ है स्ट्रिप्ट और स्लैश्ड, वायलेंस को सजेस्ट करता है, हालांकि वायलेंस नहीं था, जस्ट ये फाइनेंशियल हुआ है, लेकिन वी कैन नॉट कॉल इट फिजिकल वायलेंस, वी कैन नॉट रिजेंबल इट विद फिजिकल वायलेंस। तो ये माइनर डिटेल्स वर्डिक कहता है कि इफ ही प्लेस अगर डिटेल में अगर हम माइनर डिटेल्स को देखें तो ये एब्स्ट्रैक्शंस होंगी और जनरलाइजेशंस होंगी। तो जब भी ये देखें किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी डिस्कोर्स में एब्स्ट्रैक्शंस हो रही हैं या जनरलाइजेशंस हो रही हैं तो इसमें देयर इज समथिंग आइडियोलॉजिकली बीइंग डन, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमें तो न्यूट्रल टर्म्स जो हैं ये भी इस्तेमाल हो सकती हैं लेकिन डिस्कोर्स प्रोड्यूसर जो है वो नहीं करना चाह रहा होता है एट टाइम्स। तो वी गॉट टू फाइंड दिस आउट। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ इसका जिसमें भी हमने ये देखा है कि लाइक किस तरीके से हम वर्बल लैंग्वेज के अंदर जो सिमियोटिक चॉइसेस होती हैं जो कि एक खास किस्म की रियलिटी को प्रेजेंट कर देती हैं अगर उनको बदल दिया जाए। तो अभी हम देखते हैं कि इमेजेस में क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरीके से रियलिटी को क्रिएट करती हैं। इसमें चार चीज़ें हैं, आइकनोग्राफी है, एट्रीब्यूट्स हैं और सेटिंग्स है और सेलियंस है। तो हम भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज के पास इतनी पावर नहीं है जितनी एक इमेज के पास है। इसमें बहुत सारी ओपन इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। इवन दो कि टेक्स्ट जो है हम लिखते हैं डिस्कोर्स जब भी लिखते हैं उसमें भी विजुअल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम किस किस्म का फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस्म का कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइलाइटिंग क्या कर रहे हैं, लाइन स्पेसिंग क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट क्या है हमारी। हम रीडर को चाह रहे हैं कि वो पढ़े या इतना तंग करके लिख दें, छोटा करके लिख दें कि वो उगता जाए कि यार बस ठीक है। सो
ये भी चीजें वहां पे नॉन लिंग्विस्टिक्स इवन की लैंग्वेज के अंदर भी ये चीजें हो रही होती हैं, स्टिल ये जो है विजुअल्स में आ जाएंगी। मेटा माइट बी लिंग्विस्टिक्स, यू कैन कॉल देम। सो कलर्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं वगैरह वगैरह, किस पेपर के ऊपर प्रिंट है, तो ये चीजें लैंग्वेज में भी हैं। तो इमेजेस, जो फर्स्ट चीज है इमेजेस में देखने के लिए वो है आइकनोग्राफी। ये बहुत आसान लफ्जों में दो चीजें इसका मतलब ये है। एक एक का मतलब इसकी इसको समझने के लिए कोई भी इमेज है उसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। जिस तरह कोई भी लैंग्वेज का वर्ड है या सेंस स्ट्रक्चर है, उसके दो लेवल पे, एक लिटरल मीनिंग होता है, एक फिगरेटिव या कनोटेटिव मीनिंग होता है। तो इसी तरह कोई भी इमेज है, अगर मैंने एक इमेज के अंदर हाउस मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पे, तो इसका जो लिटरल मीनिंग या जो डेनोटेटिव डिनोट कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है इमेज, इसका मतलब ये कि एक है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि ये हाउस तो हो लेकिन ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। तो इमेजेस की भी दो तरह की इंटरप्रिटेशन होगी, एक लिटरल माइट बी, लिटरल मीनिंग क्रिएट करने के उस कॉन्टेक्स्ट में होगा कि इसको डिनोट इस वो करने का है, और दूसरा कनोट है कि एक इशारा दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट या जनरल आइडिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों लेवल के ऊपर इमेज को समझना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे बेग बड़ा हुआ है, क्या वाकई ये बेग के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है या इशारतन कहीं पे अलूड अलूड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया गया है इमेज में। तो वी गोटा फिगर दिस आउट। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ये एक फॉर फैशन में एग्जाम्पल होम से मुझे आपने हाउस का दिया, तो यूजुअली ऑन वेबसाइट्स भी इंस्टेड ऑफ राइटिंग होम, अ होम इज मेड, रूफ टॉप इज शोन। यस जो यस वेबसाइट्स पे आप देखें तो कॉर्नर में, तो दैट डज नॉट मीन होम फॉर ह्यूमंस, दैट मीन्स द होम ऑफ द वेबसाइट। यस जी एग्जैक्टली प्लीज एग्जैक्टली। कंटिन्यू। तो ये एक पहले चैप्टर के बुक में थी, ये पिक्चर है, ये कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन है, ये ये मैगजीन फैशन मैगजीन है बेसिकली। तो ये शो तो यही करती है कि वीमेन हैव पावर, या लाइक वीमेन को एम्पावर करने की या उनकी एजेंसी समहाउ इम्प्लिसिट तरीके से शो करती है अपने टेक्स्ट वगैरह में। तो ये इमेज वहां से लिया गया है। तो इस इमेज 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 में जो है ये जो कुछ चीजें सिंबॉलिक हैं और कुछ लिटरल हैं। सो फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे इमेज जो है कुछ वैल्यूज को, अगेन ग्लैमर को, एक्साइटमेंट को और वीमेन आइडेंटिटी को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सन्स भी इसमें बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट, इसको लिंक किया जा सकता है पर्सन्स के साथ, एटीट्यूड्स के साथ, वैल्यूज के साथ और एक्शंस के साथ भी। इसको जो है आगे हम जाके इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से एक इमेज के अंदर कितनी चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं। तो अगेन इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू इट, ओनली देन जो है हमें पता चलेगा कि डिनोशन क्या हो रही है और कनोटेशन क्या हो रही है, लिटरल क्या है और फिगरेटिव क्या है, सिंबॉलिक क्या है। तो दोनों चीजें एट द सेम टाइम भी हो सकती हैं। For example, students often look at advertisement of a car, for example, immediately speak of, अच्छा, ये कहता है जब भी एनालिस्ट के तौर पे आप अपने आप को देखेंगे तो जनरली यही होता है कि जब पूछा जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एन इमेज, तो आप फौरन से बता देते हैं कि ये दिस इज इमेज ऑफ कार, तो इट सिंबलाइजेस एनर्जी और स्टाइल और मॉडर्निटी। लेकिन इसमें वो कहता है दोनों चीजें आपने देखनी होती हैं कि ये कार का मतलब वाकई कार है, माइट बी यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल या हो रही हो या सिंबॉलिक इस्तेमाल हो रही हो, या हो सकता है दोनों मीनिंग हो। यू कैन बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो इस इमेज में हमने जो देखा, जो भी हमने ये प्रीवियसली स्लाइड के ऊपर देखा था, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके ऊपर जो है अगर डेस्क को बड़े हम क्रिटिकली देखें, इट इज वेरी क्लीन एंड शाइनी पॉलिश्ड सरफेस है, राइट। तो क्लोथ जो है विमेन की, उसके हम ये भी देखेंगे कि किस किस्म की क्लोथिंग है, प्लेस कौन सी है, कौन सी चीज़ें उसके डेस्क के ऊपर है, सेटिंग क्या है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम इमेज में देखेंगे और इन दोनों को लिंक करेंगे, क्या ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या एक्चुअल जो है उसकी है। हर चीज़ की दोनों मीनिंग्स होंगे। अगेन जितना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होगा इमेज, उसमें बहुत ज़्यादा फोरग्राउंडिंग और उसकी कनोटेशन उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जितने कम क्लैरिटी, अगेन वी हैव आर्ट्स में ये होता है, एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्शन की इंटरप्रिटेशन शायद बहुत ज़्यादा, आप हर एंगल से आप इंटरप्रिटेशन उसको किसी न किसी तरीके से लिंक करके कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे एक इमेज के अंदर और ऑब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, तो उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शायद उनकी उतनी कम होती जाएगी, इवन दो एवरीथिंग इज मे बी सिंबॉलिक, बट एब्स्ट्रैक्शन में सिंबॉलिक ज्यादा होगी, जनरलाइजेशन में सिंबॉलिक सिंबलिज्म ज्यादा होगा उसमें। तो ये दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं।
connotation में again what we are doing, we are making associations, right? तो ये associate कर रहे होते हैं. Might be इसने women को use किया, signify women as having life that is fun, glamorous, right? कि वो डोमेस्टिक लाइफ की कैद नहीं है ऐसी औरत, राइट? अगर आप हमारी जो मैगजीन्स पढ़ते रहें, हमारे आर्टिकल्स पे अमल करते रहें, हमारी डिवाइसेस, हमारे कॉस्मेटिक की चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, तो यू माइट इन फ्यूचर बी glamorous, or you might have fun, or you might not be restricted to your domestic life if you follow this advice within this particular discourse. Might be इस तरह की reality create करने की कोशिश की जा रही है. तो यहाँ पे connotation का ये इसने बताया, connotation and meaning potential, they are somehow different. मीनिंग पोटेंशियल का मतलब ये है अगर the writer says that if we use word meaning potential, it will have an advantage over connotation because the meaning potential will suggest not something fixed but a possibility. अगेन ये लफ्जों का माइट भी हेर फेर है यहाँ पे, ये इशारतन ये माइट भी आप कह रहे हैं यहाँ पे. तो दूसरी चीज जो इमेजेस में पहले तो हमने अभी ये देखा कि आइकनोग्राफी देखनी है कि इमेजेस में जो चीज़ें हैं या ऑब्जेक्ट्स या सेटिंग या कुछ भी चीज़ मौजूद है किसी इमेज में, ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो लिटरल मीनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं माइट भी, या कनोटेटिव या पोटेंशियल मीनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. दूसरा हमने भी एट्रीब्यूट्स, राइट, कि वो क्या आइडिया कन्वे कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वो उनका मीनिंग क्या है वहाँ पे, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैगजीन के अंदर हमने देखा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे. कंप्यूटर था वहाँ पे, एम्प्टी डेस्क था, हैंड बैग पड़ा हुआ था टेबल के अंदर, ठीक है. क्लोथिंग थी विमेन की, उसने हाई हील पहने हुए थे, देन स्कार्फ उसके राउंड उसके नेक में था. तो ये सारी चीजें की रिप्रेजेंटेशन है, ये एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल माइट भी इनका मीनिंग ये अगेन पोटेंशियल मीनिंग होगा, फिक्स्ड मीनिंग नहीं हो सकता इमेज का. एम्फेसिस माइट बी ऑन ये सारी ये लूज हेयर पहनने का, इस तरह का स्कार्फ उस तरह का पहनने का या हाई हील पहनने का माइट भी इन सारों का मतलब ग्लैमरस लुक हो कि मैं बड़ा फैशनेबल हूँ. माइट बी हैंड बैग इन प्रोमिनेंट प्लेस, बड़ी विजिबल है, या इट्स वेरी एक्सपेंसिव बैग, अगेन आई एम रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री. और माइट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन नॉन डोमेस्टिक सेटिंग, अगेन ग्लैमरस, फ्री, एक्सेट्रा. जब इसको कंपेयर करें जो है इसका मीनिंग माइट भी ये मीनिंग हो, ये माइट वी माइट एट्रीब्यूट इट टू दैट वे. Again, short skirts, revealing tops, high heels, shiny red, sensuous lipstick might be sexuality से या seductiveness से इसका link किया जा सके. So तो ये सारी चीजें जो हैं हम आगे जाके हम देखते हैं कि इनकी हेडिंग्स होंगी बकायदा. सो इसमें आप जब एनालिसिस हम वी गना carry out, तो वी गना मेक दीज एट्रीब्यूट्स कि किसको एट्रीब्यूट कौन सा आइडिया कन्वे करने की कोशिश की जा रही है. देन है हमारी सेटिंग. तो सेटिंग बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट माइट बी सिंपल वर्ड्स में, या कॉन्टेक्स्ट माइट बी कि किस जगह पे है. तो हमने जो इमेज देखा वो ऑफिस सेटिंग के अंदर था, राइट. तो लाइक वीमेन, इवन दो कि वीमेन कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे. तो एम्प्टीनेस यहाँ उस सेटिंग के अंदर बहुत, इफ वी एनालाइज इट अगेन, देखिए ये बहुत सारी स्पेस खाली है, स्पेशियस है, बहुत थोड़ी सी ऑब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ पे जो एम्प्टीनेस है इसका मतलब ये है कि लग्जरी है ये, यानी कि माइट बी दिस वुमन इज अ बॉस, कि इसने इतना काम नहीं करना होता, बस हल्का सा काम देखना होता है, या माइट बी सिग्नेचर करने होते हैं, माइट बी लाइक एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है, इंटरेस्ट है माइट बी हॉल की, इतना लाइक इसके ऊपर नहीं है प्रेशर या बर्डन या व्हाटएवर, बहुत सारे मीनिंग्स हो ओवर सकते हैं इसके. क्राउडेड नहीं है, प्लेस भी और ओवर क्राउडेड नहीं है. या प्लेस भी दूसरा बंदा नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम है, अगेन प्राइवेसी है माइट बी. तो ये सारे मीनिंग्स इससे हो सकते हैं. Again, women's in these magazines, women's lives are presented as playful fantasies, right? The objects, again, women are treated as objects most of the time. So, with the idea of women as independent from domestic situation, as fully able to enjoy our own sexuality, has become some of to extent intertwined with consumerism. अगेन उन्होंने चीजें बेचनी है, कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिस्ट है, उसकी इन चीजों को इन इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट करना होता है, तो दे यूज वीमेन एज ऑब्जेक्ट माइट बी. सो दैट इज हाउ, बट दे नेवर से इट. इट इज देयर फॉर डिस्कोर्स एनालिस्ट टू एनालाइज, बट दीज थिंग्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली expressed in these discourses. तो नेक्स्ट ये एक हमारी हॉस्पिटल की हार्ट ऑफ इंग्लैंड ट्रस्ट की वेबसाइट का होम पेज है. तो यहाँ पे दिस इज द थिंग वी विल फोकस ऑन. सो इसमें वी कैन हैव अ लुक कि इसमें ये इस डायग्राम पर्टिकुलरली इन दिस पोर्शन क्या हो रहा है. सो
अगेन जो सैलियंस, अगेन मीनिंग इसका यही होता है नोटिसेबल एस्पेक्ट्स और फीचर्स, कौन सी चीज जब आप इमेज देखते हैं तो प्रोमिनेंट चीजें कौन सी हैं। तो इसमें जो है हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं किस चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए, या बैकग्राउंड पे, या डिम करने के लिए, ब्लर करने के लिए वी यूज सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जांपल important cultural symbols. Again, आपने again we've discussed this idea that, for example, there's a advertisement on your TV screen, and they're trying to sell you a kind of cosmetic product, or might be something beauty product. So a person might be wearing a lab jacket or a stethoscope or all these things, medical equipment might be, in order to portray him as something authentic, pseudoscience, as we already discussed it. So culture, because उसका culture ऐसा है कि लेब वाले बंदे ने बात की है, so that is how they do it. So this maybe because this image is about hospital, so यहाँ पे we see a doctor wearing stethoscope. उसने एक stethoscope पहनी हुई है यहाँ पे. Again, representing, yes, we are talking about some doctors out there, some medical staff, etc. तो उस कल्चर की चीजों को आप सिग्निफाई करके भी आप जो है एक चीज को प्रोमिनेंट या हाईलाइट या बैकग्राउंड पे कहीं भी रख सकते हैं। अगेन साइज ऑफ द इमेज इट आल्सो मैटर्स, इंपॉर्टेंस किसको देना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। स्मॉल भी आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अगेन ये डॉक्टर जो सामने नजर आ रहा है, दिस माइट बी द बॉस, राइट। बाकी जो है सपोर्टिंग स्टाफ हो माइट बी, वो बैकग्राउंड में है, बहुत छोटे हैं, उनके चेहरे सही विजिबल नहीं है, बट दिस पर्सन इज वेरी प्रोमिनेंट। इसका साइज is bigger as compared to the other people out here in the background. So you can use different sizes of color, right? Then color का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, striking colors. Again, this is meant to be printed, so इसमें वो नहीं है, otherwise colors यहाँ पे बहुत ज़्यादा visible है, मुख्तलिफ, even though कि ये black and white is still this, ये बड़ा ही prominent है बाकी as compared to this. See these people in the background, they are blur, इनको like नहीं है visible. सो कलर के जरिए हम कर सकते हैं। अगेन टोन मीन्स यहाँ पे ब्राइटनेस के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, किसको ब्राइट करना है, हमारी आई को कौन सी चीज अट्रैक्ट करे, राइट। सो इसी तरीके से जब हम माइट बी टीवी वी सी थिंग्स के जब भी कोई रेसिपी शेयर होती है तो फूड के जो सर्टन आइटम्स होते हैं वो कहीं से गिर रहे होते हैं, बड़े जूम इन करके उनको जो है उनके ऊपर लाइट फोकस स्पॉटलाइट के अंदर रखा जाता है माइट बी। सो दीज टेक्निक्स दे यूज even in images. So यहाँ पे again dogger, right? So it's highlighted, glowing is glowing. Then focus, focus क्या है? तो okay, so यहाँ पे what happened? Am I visible? Am I audible? Yes, you are audible. Alright, so यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? ये एक वही जो हमने शेयर किया था कि ब्रिटिश तालिबान की जो उन्होंने अटैक कर दिया अचानक सुबह के वक्त मायर भी, तो वो उन्होंने जो है इस आर्टिकल के साथ ये वाली पिक्चर लगाई। तो इसमें जो है फोकस यहाँ पे भी एज वी कैन सी, ये जो सोल्जर है ये फोकस है। अगेन स्क्वेयरिंग भी हो रही है कि उन्होंने सोल्जर भी बना दिया और साथ में वो भी बना दिया, और अवाम जो लोग हैं आम लोग उनको भी बना दिया, लेकिन सारा इमेज का फोरग्राउंड के ऊपर दिस पर्सन इज देयर। तो जब भी इमेज देखेंगे तो हमारी सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर रहेगा, राइट। तो ये पूरी उस इक्विपमेंट में एक्सेट्रा। तो अगेन ये इस तरह की फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंडिंग आप इस्तेमाल करके ये डिस्कोर्स प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू शिफ्ट आवर फोकस। इनफैक्ट हम जो रीडर्स का या फोकस जो होता है हमारे अपने इख्तियार में नहीं होता, तो ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके वो हमारा फोकस हमसे छीन रहे होते हैं, ले रहे होते हैं वगैरह वगैरह। अगेन फोरग्राउंडिंग कर सकते हैं आप कि किसको फोरग्राउंड पे लेके आना है, किसको बैकग्राउंड करना है। तो ये सर हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें जो है ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ थिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये सारे एम्प्लॉईज हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ये लेयर्स हैं, ये बॉटम लेयर है, ये उससे ऊपर वाली लेयर है, ये उससे ऊपर वाली लेयर है, और ये सबसे शायद बैकग्राउंड वाली लेयर है, और सबसे टॉप वाली लेयर ये है। तो ये ओवरलैप कर रही हैं चीजें, फ्रंट पे है, ये बैक पे है, ये उससे ऊपर माइट भी इसके अगेन बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। माइट भी हायरार्की कि ये टॉप है, ये उससे बॉटम पे है, ये उससे बॉटम पे है, ये उससे बॉटम पे है, माइट भी इस तरीके से आप जो है ये वाला मीनिंग भी ले सकते हैं। हायरार्की है, रैंक्स हैं, might be, it can mean anything out there, importance wise भी हो सकता है। So conclusion, आज to sum up all this lecture, what we tried to cover in this lecture, सबसे पहले हमने जो जहाँ से बात start की थी कि लैंग्वेज जो है, सॉरी, कम्युनिकेशन जो है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग सिमियोटिक चॉइसेस। हमने ये देखा कि
कि एक तरह की चॉइस, एक तरह की इमेजेस, एक तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने से हमारी रियलिटी जो है, आइडियोलॉजी और हर चीज़ चेंज हो जाती है। इवन कि कुछ वर्ड्स और कुछ चीज़ें चेंज करने के अंदर जो है, और ये डिस्कोर्स प्रोड्यूसर्स ये कर रहे होते हैं। और वाइल एनालाइजिंग दिस डिस्कोर्स वी गोटा अंडरस्टैंड, वी गोटा जो है की पॉइंट पे इन चीज़ों को फोकस करना होगा। सो फॉर इमेजेस में अगेन वर्ड्स के जरिए भी फोरग्राउंडिंग होती है, बैकग्राउंडिंग होती है। हम बैकग्राउंड वर्ड्स में ये होती है कि हम उनका जिक्र ही ना करें, उन चीज़ों का सप्रेस कर दें, इग्नोर कर दें। ये सिंबलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, इनडायरेक्टली कन्वे कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगेन हमारी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब भी हम डिस्कोर्स प्रोड्यूस अगर हम खुद हैं तो हम ये एट टाइम्स कॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर दूसरे हम एनालिस्ट हैं तो हम ये चीज़ें डिस्कोर्स में देखेंगे, ये चीज़ कहाँ-कहाँ पे और किस-किस तरीके से हुई पड़ी है डिस्कोर्स में। So that's it from me. If you have any questions, I'm open for questions.